So the Balavastha, the learning for children should happen by doing things. And that is how they should, learn. Learn. Yeah, once they have grown food, they will not waste food. Once they have made cloth, they will not indiscriminately buy cloth. Once they have worked on subjects where a lot of focus is needed, that's how they develop focus. Once they have worked in activities which requires a month's time to prepare, that's how they develop patience. So these qualities which are inherently needed for their spiritual journey, their inside journey, are built through doing rather and not by telling. Once you go from Balavastha to Kishore Avastha, which is 12 and above, that's when the intellect, the cause and effect, the logical, the analytical, the synthesis, these abilities start kicking in, because as per Panchakosha, 12 is the age when the buddhi starts developing, and that is where the child starts. We see a lot of rebellion setting in nowadays, because the nature of buddhi is you want to experience that independence aspect. And around 16 is when viveka starts setting in. So this gap between 12 and 16 traditionally was easier to manage, because the physical maturity or puberty kicked in around 15 and 16, which is closer to the viveka getting starting, taking birth. But now with physical maturity, which happens around Earlier. 10 and 11 for girls, sometimes this gap has widened almost 4 or 5 years of hormonal push and pull. Yes. And the buddhi coming in, kicking in around 12. It is very tough nowadays for teachers and parents to manage the 4 or 5 years time period between 12 to 16, 12 to 17 for students. And that's a delicate time where we also see these rebellion kicking in, some questions being raised. But I think because they have dipped into so many of subjects, that leaves them, most of the students, with deep satisfaction and direction of where they want to invest more time in. And that's what our model is all about. So 12 years and above, then we sit with parents, we sit with teachers, and we sit with students and define that, okay, out of 24 subjects, let's reduce your subject to 16. And then we focus more on the subjects where they are engaging more. And they are good at, they also know, I'm good at weaving, I'm good at carpentry, or I'm good in science, I'm good in maths. Then you engage more time in those areas. And then at the age of 16, we reduce these 16 subjects further to 9 subjects only. And more focus sets in. You almost like an apprentice with the acharya in that space. So we connect them to the experts in that area where they see their future in. So through engagement, and intense engagement is where we are able to address most of the needs for students. So the rasa of each subject, so and then the focus and the long-term persistence through the years that you're saying gives them a journey and a path, a goal, so that they're not going haywire in those very delicate years that you're saying. So एक kind of जैसे pull आपने बांध दिया है, उनको बता दिया है कैसे जाना है. So it is उनकी जो see they have a plenty to engage with, and then एक बार उन्होंने उसका टेस्ट चख लिया है ना, तो फिर बाकी चीजें उतना अट्रैक्ट नहीं करती. क्या होता है कि today we are not giving our children options only. Yes. For 20 years we make them study only maths and physics and science. Yes. And English. And doesn't connect inside, because there is some semblance still of Adhyatma in our society. Exactly. So that they know ऐसा कुछ है, and there's some hollowness, because I knew that I was growing up, when I was growing up, school मुझे भाता नहीं था, लेकिन मुझे ज्ञान पसंद था. I wanted to know. I always wanted to know. But the regular schooling never attracted me. And of course, like you rightly said now, and I look back, there was so much energy in me. There was so much interest. But then where do I let it land? It was very difficult for that energy to be channelized. बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कविता जी. Throughout their life they don't even realize that, oh, this was my vritti, this is actually I took birth for. Yes. And because every child we are forcing to become an engineer or a doctor. And if you are not successful in that, then ठीक है, तुम accountant बन जाओ या कुछ और कर लो. So many jatis have died in terms of professions, and their kula vrittis have died because there's no takers.
Yeah, absolutely. Everybody wants to do engineering or medicine. But what do you, in your opinion, do students enjoy most in Vidya Kshetra? You said that ek baar ras check lete hain, so that the connection with their own Ananda, that is their Swarupa, or persisting in one thing and being good at it. Is being good equal to enjoyment, or is there something more? And does education have to be enjoyable to attract them? Just trying to understand how learning is connected to enjoyment or Yeah, persistence. of course, education should be a very joyful journey for children, unlike what it is today. It is full of pressure and, depression, and many Yes. students we are listening, hearing around that, even are pushed to Idle हो गए the हैं level सारे. that they finally end up taking their own lives. It's such an unfortunate thing. Yes. And my heart bleeds when I hear somebody say that no, only 12,000 students took their life. And I'm like, 12,000? Not even one should take their life. 12,000 is a huge number. Correct. And hence, any phase of life should be enjoyable. Why only education? The whole siddhanta of Hinduism or Sanatan Dharma is that, to live in presence. Yes. And if presence is enjoyable, then only, a good future can take birth from a current, moment. So this is the siddhanta of life, and children should be taught to live like that. Unfortunately, our whole education system is built on a principle where, it's result centered, where, happiness is in future, where you're always chasing something which will come after 10 years, after 15 years. So we make children so much used to this type of lifestyle that, whole life they're looking for something in future and never, So understand that never comes. that बी never कर लिया, फिर एमटेक करो, एमटेक के बाद पीएचडी कर लो, पीएचडी के बाद वो चाहिए, ये सर्टिफिकेशन, वो it's constantly there is some future. other goal that keeps हाँ, changing. So हाँ, one is never settled, one is never content and happy हाँ। with तो वो जो oneself. आज की खुशी की जो बात है, जो उस मोमेंट में खुशी की बात है, ये तो भगवत गीता के ही बिल्कुल विरुद्ध सिद्धांत हो गया ना, कि आप हमेशा रिजल्ट में डूबे हुए हो, जो कि बाद में It's है। the opposite हाँ, of what फिर Gita गीता says. हमारे को बोल रही है कि आपका जो अधिकार है वो आपके प्रेजेंट पे है, आपके श्रम पे है, आपके एफर्ट पे है। और अगर आपका एफर्ट सुंदर है और सही दिशा में है, धार्मिक है, तो रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट जो भी मिलेगा उसको प्रसाद रूप में आप स्वीकार करो। दिस इज एक्चुअल लिविंग अलाइंड विद भगवत गीता। बट हम लोग तो बिल्कुल विपरीत ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई नहीं, आप फ्यूचर में ही जीवन जियो। और गीता कहती है कि ना तो पास्ट के बारे में आपको चिंता. हाँ चिंता करनी चाहिए, ना फ्यूचर के बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। जो हो गया वो निकल गया, जो आगे आने वाला है वो आज के बीज में उसका भविष्य है। तो हमें आज में ही हमेशा रहना है। दिशा ठीक होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बट फोकस तो एफर्ट पे डालना है ना। सो अवर एजुकेशन मॉडल शुड बी फोकस्ड ऑन टुडेज, डेवलपिंग दैट कैपेबिलिटी इन चिल्ड्रन, दैट एबिलिटी इन चिल्ड्रन in today's situation. And we are completely, wrong-footed on that. Totally. Totally And I wrong-footed. have read, how it can be different is what you have shown by example, Vidya Kshetra's excursions. We have read some wonderful ground reports, and we also have featured them on Dhiti, our blog, and videos, amazing videos on how different subjects are taught in Vidya Kshetra in a very, very innovative manner, I must say. For example, students went, and आप लोग भी गए थे आचार्य वगैरह, and Oh, I was I love this. So I never miss that opportunity. yes. So next time I should make sure that last time very generously you had invited us, and unfortunately we couldn't make it. But आप लोग आंध्रा and Odisha गए थे to study local textiles, Sambalpur, Ponduru. Viewers से मिले, lived in villages, बच्चों के संग. They've observed the handlooms where they originated from. It's not a common practice in most schools, especially elite schools में वो तो यूरोप यहाँ वहाँ जाने की तैयारी करते हैं और इतने तक पैसा मांगते हैं. Can you tell us about this specific example, what the experience was? We did read the reports and we loved it, but just so that we understand where you were coming from with this, and any other examples you want to touch upon. Yeah. See, it's very important that तो हमारा जो भूगोल का जो करिकुलम है और जो भी हमने बनाया है, उसमें ये जो इंटरेक्शंस है ये फाउंडेशनल है बेसिकली। तो मैं भूगोल से शुरू करता हूँ और फिर मैं इस डायमेंशन में भी आ जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों लिंक करके ही गए थे जब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गए। तो हर साल हमारा भूगोल का एक अनुभव हम बच्चों के साथ में करते हैं। तो when we begin, we actually start geography by understanding Vidya Kshetra Gurukulam, its landscape and surrounding areas.
So we local wherever they are placed, so local go to local villages, local temples जो आसपास हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करना, कौन से मंदिर हैं वहां पर जाके थोड़ा समय बिताना, रेगुलर जाना ड्यूरिंग दैट ईयर, ऐसे लोकल उसको समझना पूरे से. नेक्स्ट ईयर देन वी गो एंड अंडरस्टैंड द लेक्स ऑफ बैंगलोर and how Bangalore is laid out as far as its geographical, overall landscape is concerned. And so we actually go and also interact with the villagers or the communities which are dependent on those lakes. For example, there was a community which used to work on the reed or the grass that you find on the lakeside. Then there is a community who is the washerman community. Then there is a community which control the water flow from the lakes. Now they are no more there. Very few people might still be there, very old people from those communities, because the government took over the management of the lakes, and then those communities were not needed anymore. So we children and teachers, we interact with these communities who are dependent on that lake. Third year, then we go and study the rivers and the whole landscape of Karnataka. So we go to the starting point of river Kaveri, and then we meet river Kaveri in various points, including where the whole sewage of Bangalore is dumped into river Kaveri. So children do a comparative study, or at one place you have a temple where river Kaveri starts, and which is Talakaveri, and then you have on the other side whole Bangalore sewage is dumped into the same river. So this disintegrated view, this is what I was talking about in the beginning when we started our discussion. This disintegrated view where we have separated the Vyavahara from Paramartha is so damaging, for our own existence and consciousness. So when children see these disconnections, then we have samvada with them, we have interactions with them, and then they do projects on these subject matters. Then the next year, subsequent year, we go to the neighboring states of Karnataka, where we go and visit Tamil Nadu, some temples, or we go to Arabian Sea, we go to Bay of Bengal, we visit Andhra, we visit Telangana, some states surrounding Karnataka. Subsequent year is where we go into the middle India, where we visited Odisha this year, and visited also along with that the handloom clusters. We visited temples. We visited Lingarajpuram. We visited Lingaraj temple. We visited we visited the Jagannath Ji temple, Adi Keshav temple. Many temples are there in Odisha. I think we were very lucky that most of our afternoon prasada or lunch happened at the temples. At the temples. They're very, very good cooks also. Yeah. And in Bengal for many years. People were shocked to see the culture, they were amazed that how nice it is. They were saying Munitana, where every temple, is serving us such sumptuous meal. And at a very, very small, donation that we need to give, what they were asking for. And like that, so we visited the clusters, we stayed with the villagers, we spent whole day, ate what they cooked. It was a great experience. But it was also disturbing to see that, most of these art forms, when it comes to handloom, natural dyes, growing cotton, natural cotton is fast, India is losing it very quickly. Konduru especially, it's almost extinct. So the only place in the world which was known for making 120 count thread with hand, now have only one old lady remaining who is able to make thread with hand of 100 count. Not even 120 count. 120 count we can forget it. वो चले गया, वो हमारे हाथ में से वो कुशाग्रता, वो स्किल हम खो बैठे हैं. अभी एक ही सिर्फ अज्जी रह गई थी जो 100 काउंट का धागा हाथ से बना सकती थी, और बाकी सारी जितनी ओल्ड लेडीज थे वहां पर उनके हाथ से 80 का या 90 काउंट का धागा ही बन रहा था. जब मैं काउंट बोलता हूँ उसका मतलब होता है कि 1 स्क्वायर इंच में कितने थ्रेड्स हैं, वो एक काउंट का तरीका है. दूसरा मेजरमेंट है कि अगर आप 10 ग्राम धागे में 1 किलोमीटर धागा बना सकते हैं तो उसका काउंट जो है 100 होता है, क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाय 10. तो ऐसा, तो आप सोचिए कि कितना बारीक धागा बना होगा. फाइन होगा 120 का कितना फाइन होगा, 120 का कितना फाइन होगा. तो वो अभी हम खो चुके हैं, और थोड़े ही सालों में जब ये अजीबी नहीं रहेंगी तो 100 वाला भी हम खो बैठेंगे.
क्योंकि बाकी जितने वहां पर लेडीज थे वो तो हमें 90 का या 80 का ही काउंट दे पा रही थी। तो ये अभी सिचुएशन है कि नेक्स्ट जनरेशन नहीं ले रही है इसको। उसमें हमारी सामाजिक प्रॉब्लम भी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्यों, मतलब इफ वी हैवंट गिवन देम एन वाइबल इकोनॉमिक Expensive ऑल्टरनेटिव, alternative. हाँ. yeah, they should feel proud first of all, but they should also be able to sustain themselves and their families, and which is not happening. The reality is very different on the ground. तो इसलिए हमें उसके इकोनॉमिक पहलू और एजुकेशनल और कल्चरल पहलू सब पे साथ में विचार करना होगा। तभी हम इन कलाओं को, इन विद्याओं को बचा पाएंगे और अगले जनरेशन के साथ शेयर कर पाएंगे। इट इज वेरी कनेक्टेड मुनि जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उचित है। क्योंकि पहले कैसे होता था कि हमारे यहाँ, आई एम श्योर इट वाज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया एंड रीजन्स, कि कोई भी त्योहार हो या कोई लेन देन है, वो कपड़ों के साथ होता था। सो आई रिमेम्बर वी वेंट एनीवेयर, अम्मा वुड गो बाय वहां का जो लोकल हैंडलूम है, तो साड़ियां तो देनी है, साड़ी एंड धोती। सो यू आर सपोज टू गिव अनस्टिच क्लॉथ. So that is what you did for Lane Dane. It's not just for weddings, for everything. So what that would be, I think, very beneficial for the weavers, because they knew कि भाई economically they would sustain, because जो local community है वो खरीदेगी हमसे, and इतने सारे लोग हैं, जनता है, तो वो अपने हर घर में there is a need, you know, every month there will be some occasion or the other, some auspicious occasion where people will buy the cloth and give and take. Now that has reduced, and अभी गिफ्ट्स अलग बहुत विभिन्न प्रकार के हो गए हैं, तो कपड़ा कोई नहीं देता, which I have noticed, except for maybe weddings, it's still there कि भाई साड़ियां देनी है या इतने साड़ियां खरीदनी है या धोती. That also has become pants and shirts for men, and maximum kurtas. So dhoti has gone out of fashion, which is very sad, because men look splendid in dhoti kurta जो आप पहनते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं. But it's just that saris nobody wears. And it hit me because we used to have a sari wala come home, and housewives like my mother, because cash was not so easy to come by, even if you were middle class, they would pay the sari wala in installment, and वो एक colony में आएगा, सारी ladies एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, and the sari fellow will show his wares, and everybody will buy, and they will just give only certain amount. 300 रुपए की साड़ी है तो they'll just give him 15 or 20 or जितना भी, and he will trust, on trust, वो चाय भी पिएगा वहां, सबसे बातचीत करेगा, and he'll come back every month, and collect those 15-20 rupees. मम्मी ने इतनी सारी साड़ियां ऐसे जमा की, all handlooms, and he cried one day in our house saying, हमें देख के, मुझे और मेरी बहन को, कि आप लोग तो पहनते नहीं हो, तो मेरा बेटा भी अभी वो इंजीनियर बनना चाहता है, मेरे बाद कौन करेगा, मेरे पश्चात कौन करेगा. तो इट इज एक्चुअली सो कनेक्टेड, जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, क्राफ्ट्स, आर्ट्स, एवरीथिंग इज सो इंटरलिंक्ड, एंड इवन इफ वन लिंक इज मिसिंग, then you kind of breaking, it's like the cards fall down, so it's a lot of responsibility on each of us. हमें ये समझना है कि गेम हो क्या रहा है, इकोनॉमिक्स का जो गेम है आज की डेट में, इसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके दो अगर बातों को हम समझ गए तो हम इसको पूरे से डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये लोग हमारी सेंसेस को खत्म करना चाहते हैं, ताकि हम लोग के अंदर, दूसरा है हमारा एस्थेटिक्स और ब्यूटी की जो सेंस है उसको खत्म करना। तो सेंसेस को खत्म करना मतलब कि हम लोग अच्छा कपड़ा क्या है उसके ज्ञान को हम खो बैठे। तो हम प्लास्टिक डालने को भी तैयार हैं अभी। तो हम लोग, जो विवेक था हमारे अंदर कि भाई हमें सिर्फ कपड़ा, मतलब जो सही कपड़ा है, हम किसी भी चीज को कपड़ा नहीं बोल सकते ना। जैसे उदाहरण अगर मैं लूं ग्रॉस लेवल पे, कि अभी अभी जो देसी गाय है, देसी गाय वही है जिसका यहाँ पर हम्प है और जिसके गले के नीचे में झालर है। तो ये देसी गाय है। अभी हर गाय गाय नहीं है ना। तो उसी प्रकार से हमारा विवेक जो क्षीण हो रहा है कपड़े के मामले में, खाने के मामले में, सुगंध के मामले में, हमारी सारी जो सेंसेस हैं इसको खत्म किया जा रहा है। तो वो इकोनॉमिक मॉडल के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो भी दे रहे हैं, ताकि हम ये नहीं बोल सके यार ये तो बेकार है खाने की चीज, ये क्या है, ये क्या तुमने डब्बे में डाल के दिया। अगर हमारी टेस्ट की जो सेंस है उसको खत्म कर दिया गया तो हम कुछ भी खा लेंगे। अगर हमारा पहनने का जो विवेक है वो खत्म कर दिया गया तो हम कुछ भी पहन लेंगे। फिर वो पॉलिएस्टर बेचेंगे, जो कि आज के डेट में है। आप जितने भी बड़े ब्रांड ले लीजिए, सारे के सारे बेच क्या रहे हैं, प्लास्टिक ही बेच रहे हैं अलग अलग तरीके से। कौन आपको खादी का बेच रहा है या कौन आपको कॉटन का दे रहा है। तो ये जो विवेक जो खत्म करा जा रहा है हमारे समाज में,
शिक्षा के थ्रू या व्यवस्थाओं के थ्रू इस गेम को समझना चाहिए। दूसरी बात समझनी चाहिए कि हमारी सेंस ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, अभी रविंद्र शर्मा जी बताते थे कि हर जाति का अपना डिजाइन होता था। यस तो यस हम लोग 1000 अलग डिजाइन बना सकते थे, उतनी क्षमता थी समाज में। जी, आज का समाज एक डिजाइन 1000 बना सकता है पर 1000 अलग डिजाइन नहीं बना नहीं सकता। बना सकते। तो ये जब बात हम समझ जाएंगे कि इतना कस्टमाइज्ड हमारे सॉल्यूशन थे, वो जो आप बता रहे हैं ना, क्योंकि वो गांव में क्या था, घर बंधे होते थे। हम्म। अगर अगर कोई बुनकर के पास आता था तो वो बोलता था, भाई कौन कौन सी आप ख्याति के हो। मैं हम्म, ख्याति जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि ख्याति का खराब होते होते जाति हो गया, जी, और जाति को आज लोग गलत ही समझते हैं यस अधिक। यस, सो तो जब ख्याति इज द उनको, बेटर यूसेज। हाँ। हाँ, जब उनको समझ में आएगा कि यार ये तो ज्ञान के ऊपर आधारित बात थी, तो तब उनको समझ में आएगा कि कितनी रिस्पेक्टफुल बात थी समाज में कि हम ख्याति बोलते थे कि भाई ये जो व्यक्ति है, इन लोगों की जो कम्युनिटी है, ये इस विषय के का ज्ञान रखने वाले लोग हैं। हम्म तो वो ख्याति जो थी, तो वो पूछता था भाई आप कौन सी ख्याति के हो, तो वो अच्छा इस ख्याति के हो तो ये कपड़ा आपके लिए बनेगा। हम्म, अ, धोती इतनी साइज की ही बनेगी, क्योंकि अगर किसान है तो उसकी धोती तो छोटी होगी होगी। शॉर्ट होगी, हाँ। हाँ, क्योंकि वो तो मिट्टी में काम करने वाला है दिन भर, है ना। तो ये जो समाज में विवेक था, ये जो सौंदर्य दृष्टि थी, ये हमारा जो है इसको खत्म किया जा रहा है एक स्पेसिफिक एजेंडा के तहत, ताकि हम कंपनियों के बनाए हुए, फैक्ट्रियों के बनाए हुए जो भी हमें बेचा जाएगा फिर उसको खरीदें। वी आर ऑल रोबोट्स फॉर देम, वी आर हाँ, प्रोडक्ट्स। वी आर एक्चुअली कस्टमर्स, कंज्यूमर्स फॉर, सो हमारे को वो चलता फिरता बैंक की तरह ही देखते हैं, दैट्स ना ऑल। कि मनुष्य की तरह जिसका जिसका ख्याल रखना है, जिसके साथ रिश्ता बनाना है, वो नहीं है जी। समाज में। तो ये बात को हमें समझना जरूरी है। पर हाउ वुड यू ब्रिंग दैट इन द गुरुकुलम, क्योंकि जैसे कि आपके गुरुकुलम में फी स्ट्रक्चर के में बताइए कि हाउ डू यू मैनेज द एक्सपेंसेस। आपने बताया थोड़ा बहुत, जैसे अभी कर रहे हैं कि जो आपका कपड़ा है उसके ऑर्डर्स आते हैं, या आपने कोई क्राफ्ट से फूड आइटम्स, बट दैट इज नॉट अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। सो या हाउ डू यू मैनेज टू कीप अप द वे यू डू? जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्रति वर्ष एक बिल्डिंग का, जैसे आप कह रहे थे, या और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड यू डू नॉट टेक यू नो पर्टिकुलर सेट फी। सो हाउ इज ऑल दिस वायबल इफ समबडी एल्स वांट्स टू स्टार्ट अ गुरुकुलम? आपका देखा देखी में ये सुनकर होपफुली दे डू। हाउ डू यू एडवाइज देम कि क्या करें? और नहीं, या प्लीज गो अहेड। बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कविता जी कि उनको ऐसा गुरुकुल खोलना है। जी, ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी टू लुक दैट व्हेन वी स्टार्ट। हमें या, भी 10 साल पहले, जब हम, आज 9 साल हो गए विद्या क्षेत्र को ऑन द ग्राउंड, और 14 साल की ये जर्नी है अभी तक जो है। तो जब हम शुरू कर रहे थे तो हमें भी बहुत लोगों ने बोला, अरे ये तुम क्या रामायण के युग की बात कर रहे हो, ये क्या, ये आजकल के जमाने में ये सब नहीं होता है, तुमको स्कूल और एजुकेशन तो सबसे बड़ा बिजनेस है, इसमें तुम बिना फीस के कैसे चलाओगे। तो पर हुआ, 9 साल से तो हम लोग कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके प्रयास में पवित्रता आप करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, सिंसियर तरीके से, बट इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन क्वालिटी ऑफ कोर्स। सो society stands along with you. There will be little ups and downs, of course, in any journey there will be. So there were some tough years, there were some easy years. uh, so we completely run Vidya Kshetra on Dan, Dakshina and Viksha model. We have never charged fees. So there are people who are able to give maybe some handful of grains for the whole year, and then there are some people who are able to give in lakhs also. There are children studying at Vidya Kshetra from this all these families. uh, we are very happy to share that the reason, we are very happy to share that every year we have been able to run this system, and I strongly encourage people to do so. There is a very basic reason behind it, Kavita ji. See, it's very easy for us to put 4-5 lakh rupees fees and then हो जाएगा काम, पर हमारी जर्नी नहीं होती ना फिर। अगर आचार्यों को भी उस धर्म के रास्ते पे चलना जरूरी है, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी धर्म के रास्ते पे चलें, बहुत सिंपल है ना। हाँ, और शिक्षा तो ऐसा विषय है जिसको बेचना नहीं चाहिए, ये तो जी, धर्म धर्म अनुकूल बात हुई। वो अर्थ का विषय है, तो अर्थ में अगर हम देखें तो अगर हम चार्ज करेंगे तो वो अनर्थ हो जाएगा।
ऐसे ही अन्न, औषधि और विद्या, ये तीनों को कभी बेचना नहीं चाहिए करके हमारा सिद्धांत रहा है सनातन धर्म का। अब आज का काल हो या कोई भी काल हो, उसमें इसको नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, पॉल्यूशन हो जाएगा वरना अगर हम चार्ज करेंगे तो So तो तो वो पॉल्यूशन को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और आता है, समाज खड़ा होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी कुछ कंपनीज हैं जो हमें CSR फंड देती हैं। wonderful. पेरेंट्स जो हमको दान या जो हमको दक्षिणा देते हैं, उससे हमारा लगभग 50% के करीब मैनेज होता है। और बाकी फिर हम समाज से लेते हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़ते हैं इस वजह से। अगर आपको समाज को साथ में जोड़ना है तो ये सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि फिर वो लोग सिर्फ दान के साथ ही नहीं जुड़ते ना, वो दिल के साथ भी जुड़ते हैं। हम्म। तो इसलिए आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका प्रयास भी लाइन पे रहता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने एजुकेशन को पैसे से अलग Just- रखा। पर हम आचार्यों को मानधन देते हैं। सी, ये आज की परिस्थिति है, अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ सबसे कम, हम विद्या क्षेत्र ही नहीं बोल रहा, मैं भारत की परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, कि टीचर्स की जो सैलरी है या मानधन है वो सबसे कम कैटेगरीज में आता है। हालांकि सबसे ज्यादा मतलब अच्छी कैटेगरी में होना चाहिए, कंपैरेटिवली नहीं बोलूंगा। उनको पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए, उतना Yes. तो होना ही चाहिए। तो हमारा भी यही ड्रीम है कि ऐसा हम कर सकें। समाज का सहयोग अगर हमें मिलता रहेगा और आगे से आगे अच्छा होगा, तो वो भी परिस्थिति आएगी जब अवश्य। आचार्यों के लिए पैसे का विचार नहीं आए मन में। तो अभी तो हम लोग उतना नहीं दे पाते, पर ठीक ठाक, मतलब हम मानधन आचार्यों को दे But पाते वो हैं। idol से जुड़े हैं at the moment. The idealism is the passion is हाँ, driving them. हाँ, And the हाँ। students, at what entry points do you have intake of students? For viewers who are watching or who are interested, maybe to try their luck among the 200 or 300 people who will come next year. कब कब आप लेते हैं बच्चों को? हम लोग 4 साल से लेते हैं बच्चों के को, तो हमारी शिशु अवस्था में शिशु वाटिका है। और हम लोग 10 साल की आयु तक ही बच्चों को लेते हैं, इनफैक्ट 9 साल की आयु में बोलूंगा, 10 से कम। So 4 to 9, that's it. 4 to 9 इज दी 9 years. एडमिशन ब्रैकेट। उसमें भी मैक्सिमम बच्चे जो है हम 4 साल की आयु में ही लेते हैं, क्योंकि 6 से ऊपर की तो वही बच्चों को ले पाएंगे जिस आयु में अगर कुछ कम है। हम हर आयु में हर हम्म, आयु में 15 ही मैक्सिमम लेते हैं। हम्म, तो इसलिए अगर उस आयु में 13 बच्चे हैं तो हम 2 ले पाएंगे। हम्म, कई आयु में तो हमारे पास ऑलरेडी 16-17 हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो इसलिए उन आयु में तो नहीं नहीं ले लेते आप। पाते हैं। हाँ, तो 4 और 9 के बीच में भी बेस्ट चांसेस 4 साल में जो होने का। और हमारे यहाँ अभी 19 साल के बच्चे भी हैं, तो जो हमारे साथ पिछले 9 सालों से हैं, वो हैं। और तो 4 साल से 19 साल के बीच में आयु में अभी 135 बच्चे, 135 स्टूडेंट्स आर देयर एट विद्या क्षेत्र एट प्रेजेंट। ब्यूटीफुल। सो दिस इज नॉट अ रेजिडेंशियल मॉडल। तो आप इसको गुरुकुलम कहते हैं क्योंकि आचार्य हैं और उसी जैसे भारतीय दृष्टि से चलता है, और आपने समझाया जैसे कि पहले होता था कि डे गुरुकुलम्स होते थे। तो कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारे लॉजिस्टिक्स के गुरुकुलम का मैं समझ सकती हूँ कि भाई रेसिडेंशियल अगर है तो वो सेवा हो रही है और सब लोग कर रहे हैं एक साथ जुट के। पर ये वाले मॉडल में ये सब कैसे होता है? डू यू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू डू ऑल दिस, और कैसे होता है सब कुछ भोजन हम लोग बनाना? मिलके ही करते हैं, साथ में ही हम ही लोग करते हैं प्रतिदिन प्रतिदिन? प्रतिदिन। हाँ, तो हमारा गुरुकुल रेजिडेंशियल नहीं है, पर समय बहुत बड़ा है। सुबह हम्म, 7 बजे के करीब बच्चे आते हैं और शाम को 4:30 बजे जाते हैं। हम्म, तो सुबह से लेके शाम तक जो मॉडल है उसमें हम्म। गुरुकुल की सफाई, देख रेख, सब कुछ जो है आचार्य और बच्चे मिलके करते हैं। कृषि भी सब आचार्य और बच्चे मिलके करते हैं। ऐसे ही सारे विषय जो हैं सब तो साथ 7 बजे अगर कोई आता है तो यहाँ का जैसे रेगुलर है कि लोग नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं 8-9 बजे, तो उनको भूख लगती होगी बच्चों को, या आपने उनको एक तरह से साधना बता दिया है, ट्रेन कर दिया है कि 10 बजे जब भोजन बनेगा सब मिलके खाएंगे? और हाउ डज इट वर्क? आई एम जस्ट क्यूरियस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, बिकॉज आई गेट हंग्री इन द मॉर्निंग। कि मैं आऊंगी तो फिर कैसे होगा ये? यहाँ पर काम इतना है कि बच्चे, अभी आप देखेंगे कोई भी बच्चा जो है ओवरवेट नहीं है विद्या क्षेत्र में, हाँ। क्योंकि श्रमदान में, कृषि में, भरतनाट्यम में, क्रीड़ा में हर रोज खेलते हैं बच्चे।
तो उसमें उनका अपने आप वजन तो एड्रेस रहता ही है। पर अल्पाहार की बात हुई तो अपना अल्पाहार बच्चे घर से लाते हैं। पर दोपहर का जो भोजन है वो विद्या क्षेत्र में बनता है। तो सभी के लिए हमारे यहाँ एक मेन जो हमारे यहाँ कुक हैं वो एक हैं विनायकना जो मेन। पर हर रोज एक पेरेंट कपल, सहायता करते हैं। माता और पिता, वो आते ही आते हैं रोटेशन में। तो 4 महीने में उनकी सेवा आती है। और हमारा जो पाकशाला है वो पूरे की पूरे जो किचन है वो सारा अभिभावक ही मैनेज करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट क्या लाना है, क्या मेन्यू होना है, आयुर्वेद हमारे एक आचार्य हैं उनके साथ बात करके उसी के हिसाब से पूरा मेन्यू सेट होता है कि क्या बनता है हमारे पाकशाला में। और हर रोज बच्चों के लिए एक सब्जी, एक सांबर चावल के साथ में, और रसम, और बाद में बटर मिल्क मज्जिगे, ये रहता ही रहता है। साथ में घी हम देते हैं देसी गाय का। तो ये सारा, क्योंकि इतना श्रम बच्चे जो कर रहे हैं फिजिकल वर्क, उनको अगर ये न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव। पढ़ने का कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, हाँ, तो घी तो इसलिए आवश्यक है। हाँ, न्यूट्रिशन बहुत आवश्यक है। और तो ये सभी चीजें हर रोज इसी प्रकार से भोजन बनता है। और लगभग 250 लोगों के लिए, 175 पीपल के लिए एवरी प्रतिदिन। प्रतिदिन दोपहर का भोजन बनता ही है, क्योंकि 135 तो बच्चे ही हैं। हाँ, और फिर आचार्य और और बाकी। 20 से 25 आचार्य रहते हैं। और कई बार अभिभावक और विजिटर्स जो हैं वो रहते ही रहते हैं। तो सबका मिला के लगभग 170 175 संख्या हो ही जाती है हर रोज। दैट इज वंडरफुल। ये तो अन्नदान के एक तरह से वही हुआ, जी आप जी जो कर जी। रहे तो हैं। हम, कोई भी पूछता है विद्या क्षेत्र को कैसे सपोर्ट करना है, तो हम बोलते हैं आपको यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। जी। आप गो सेवा से लेके अन्नदान, या आचार्यों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। विद्याक्षेत्र.in, विद्या VIDYA क्षेत्र .com, डॉट कॉम। .org एंड .com दोनों है We'll put उसमें। it in the description so जी people can donate. जी और जो शास्त्र हैं हमारे, भगवत गीता से लेकर जो आपने बात की है, विच इंस्पायर्ड यू, योग सूत्र हैं, जो भी हैं, आपने कहा कि, या तो मैंने ऐसे समझा, ये ब्लेंडेड है आपके करिकुलम में। जी। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे बच्चों ने रेसिस्ट किया बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड, या पेरेंट्स ने, कि ये सब क्यों, अभी ये तो पुराने हैं, एंशियंट क्लासिकल रिलीजियस और स्पिरिचुअल, ये सब आउटडेटेड है, हमें नहीं इसकी आवश्यकता है, ऐसा कभी हुआ? हाउ डिड यू ओवरकम दैट, बिकॉज दैट इज अ बिग issue and obstacle in some schools in some areas. पेरेंट्स से तो नहीं हुआ कभी भी। अच्छा। पेरेंट्स से तो उल्टा दूसरी तरफ ही होता है कि थोड़ा ज्यादा करिए करके। जैसे हमारे यहाँ एक पेरेंट थे, वो बोले संस्कृत कम हो रहा है, संस्कृत ज्यादा करिए। हालांकि हमारे यहाँ 3 संस्कृत के आचार्य हैं। व्याकरण लेवल तक बच्चे पढ़ते हैं बहुत अच्छे से 16 साल तक, और उसके बाद अपने अपने शास्त्रों में आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई बच्चा योगा को आगे लेके बढ़ रहा है तो योग सूत्र, कोई भरतनाट्यम को ले रहा है तो नाट्य शास्त्र, और भरतनाट्यम से जुड़े हुए और शास्त्र, कोई आयुर्वेद को लेके बढ़ रहा है तो उसके रिलेटेड जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन। तो ऐसे हमारे यहाँ पर रचना है हमारे करिकुलम की। तो शास्त्रों का अध्ययन तो है ही है ही। हमारे यहाँ वेद नहीं अभी पढ़ाए जाते, क्योंकि वेद तो अभी भी और गुरुकुल हैं। और मुझे लगता है कि वेद बच्चों को अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो वो संभावनाएं हैं, क्योंकि डे गुरुकुल है तो कई बच्चे शाम में या वीकेंड्स पे अपने ऐसे वेद अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा इतिहास पे और पुराणों पे भी बहुत जोर है। हम लोग श्रीमद् भागवतम से और रामायण और महाभारत, इसमें बहुत समय देते हैं बच्चों को। 10 साल की आयु में श्रीमद् भागवतम से कथाएं और सृष्टि की, और 11-12 में रामायण। 2 वर्ष लेते हैं हम रामायण का अध्ययन करने के लिए, कहानी रूप में और कथा रूप में और गीत रूप में और संवाद रूप में हम उसको लेते हैं। ऐसे ही महाभारत को भी 2 वर्ष पूरा अध्ययन लेके हम लोग करते हैं पूर्ण। तो ये सारी जो बातें हैं, अभी अधिकतर बच्चों इसमें बहुत रुचि से भाग लेते हैं। आपका जो प्रश्न है वो है कि कुछ बच्चे इसमें रिसेंट करते हैं या नहीं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा। बहुत कम मात्रा में ये देखने को मिला है, पर मिला है। खासकर हमने जो देखा है ये 14, 15 और 16 साल की आयु में आते आते, क्योंकि जो बच्चों का एक्सपोजर ज्यादा मोबाइल फोन पे है, यस। इंटरनेट का है, या बाहर का जिनका जो है ना, हाँ। बाहर का एक्सपोजर जिन बच्चों में ज्यादा है, जहां फिर हम अभिभावकों को बोलते भी हैं कि आप ये एक्सपोजर को थोड़ा कम करिए, क्योंकि
अगर बच्चा मूवीज को या इंटरनेट पे या इंग्लिश गानों के प्रति या इंग्लिश लिटरेचर के प्रति, बुक्स के प्रति, हमारे यहाँ इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई जाती है। हम्म, हम 4 भाषाएं विद्या क्षेत्र के बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, संस्कृत, कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश। वंडरफुल। और इसमें से 3 भाषाओं को ग्रामर लेवल तक सीखते हैं, जिसमें कि संस्कृत, कन्नड़ा और इंग्लिश है। और कहीं किसी भी रूप में उनको ऐसा नहीं होता कि मुझे कुछ कम है। पर ये जरूर बच्चों को मालूम है कि पहली भाषा या तो संस्कृत है या कन्नड़ा है, मातृभाषा इंग्लिश है नहीं हम है, लोग। हाँ। इंग्लिश नहीं है। पर फिर भी इंग्लिश बुक्स जो आजकल हैं, अगर हम पढ़ते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि उसके साथ इंग्लिश कल्चर भी हमारे पास आता है। यस। क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस, जैसे पर्सी जैक्सन की है या हैरी पॉटर है या बहुत सारी बुक्स हुई, बहुत प्रचलित भी है, पर उसमें जो भी कल्चर है वो तो उनका कल्चर है ना, दृष्टिकोण उन्हीं का होगा, हमारा नहीं होगा, भारतीयता नहीं। इंडिविजुअलिटी का कल्चर है। जी। वो लोग टीचर्स के विरुद्ध बात कर रहे हैं, बच्चे राइट्स का कल्चर उसमें, है, हाँ, ड्यूटी हाँ नहीं। उसमें, हाँ स्कूल को बंक कर रहे हैं, स्कूल से बाहर जा रहे हैं, एजुकेशन के विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो ये सब कल्चर जो है, ये बच्चों को भी फिर मिलने लगता है, अगर वो पढ़ेंगे तो उनको भी लगता है अरे यहाँ भी हम वही सब कर सकते हैं। हम्म, फिर जिनका रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ऐसे कुछ बच्चों में हमने देखा है, और पेरेंट्स का जहाँ सपोर्ट पूरे से नहीं है, उन उन बच्चों में खासकर, कि वो लोग फिर थोड़ा सा भटक जाते हैं उस आयु में। उनको कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है कि भाई उस मूवी में तो मैंने देखा बहुत कुछ अच्छा भी कर कॉलेज सकते है। हैं, हाँ, कुछ भी हाँ, कर हम सकते लोग हैं। कैंटीन में ही बैठे रहेंगे, बंक कर सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं। जी। तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये कॉलेज लाइफ तो बहुत अच्छी है, विद्या क्षेत्र गुरुकुल तो मतलब रूल्स और हमारे जो डिसिप्लिन है या भारतीय संस्कृति, ये तो विरुद्ध लगने लगती है। तो ऐसे कुछ बच्चों में हमने ये देखा है, फिर हम उनके साथ बात करते हैं, कोशिश करते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, कोशिश करते हैं। और अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि बच्चे संभल जाते हैं। कुछ केसेस में जिसमें नहीं संभल पाते हैं, तो फिर 16 साल में हमने देखा है, वी हैव लॉस्ट couple of students like that who are They good leave, they students. leave the school, is it? They leave, Oh. because they then join college, after that, Oh. which is reality, and we should accept that fact. But it's very few. Hmm. Most of the children continue till 21 with us, and And are they able to manage when they go out into the world, so to speak? Uh, uh, because this is a very secure, closed space of like-minded people. तो जब वो बाहर जाते हैं after 21, तो आपने क्या देखा है कि they are able to adjust and adapt easily? No, this is not a closed space for children, because Okay. from 11 years of age we are हाँ, going out every year. true, true. We just discussed that हाँ, geography का part या हाँ. learning trips हमारे But शुरू it's a हो short जाते हैं। time, ना, मतलब उनकी जो interaction है, mostly it is with the acharyas and the peers. नहीं, विलेजर्स के साथ मिलते हैं, दे अच्छा. इंटरेक्ट विद मेनी पीपल वेयर एवर वी ट्रैवल। सी, द फंडामेंटल रीजन वी आर ट्रैवलिंग इज दे शुड लर्न टू अंडरस्टैंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री. जी. So imagine when we are going to I was saying was, children when they travel, see, they learn a lot while during these travels. It's important to so I was just I will complete about the Bhugol what I was speaking जी. little bit back. So children also visit Himalayas. Now next year we have kept 9 days. We are going to Mahakumbh with senior हाँ, children, हाँ. and we are अगले going. वर्ष है महाकुंभ. हाँ, अगले वर्ष है। 2025. Thank you. Okay. So we are going to Prayag, we are going to हाँ, Chitrakoot, we are going to Ayodhya, we are going to very close friend of mine Jabalpur में है एक, उनके साथ जा रहे हैं to be with the villagers again for 3 days, spend time with different jatis, and then we are going to Himalayas and Rajasthan. So children will learn the language of that place. yes. They will see the dress of people. They will talk to people. They will spend time. They will eat food which is cooked And there it's not locally. cursory. जो आप कर रहे हैं वो real वहाँ living है, उनके साथ रहन सहन, भोजन हाँ, सब. तो it is कुछ भी not आर्टिफिशियल excursion in the नहीं। Western sense. It's not नहीं like नहीं नहीं that. नहीं, हाँ. हम लोग होटल में रह के जाना देखना ऐसे नहीं है. पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं हाँ, ये। पिकनिक नहीं है. हाँ, ये हम लोग लोगों के साथ उधर रह के सीखने के लिए जा रहे हैं, अनुभव सीखने है के वो. लिए, अनुभव के लिए जा रहे हैं। तो ये इससे एक्सपोजर होता है। दूसरी बात है कि जैसे जैसे बच्चे 16 साल से ऊपर हो रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया दैट दे वर्क लाइक एन अप्रेंटिस विद द आचार्यस। इट्स अ गुरु शिष्य परंपरा इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट। सो अ स्टूडेंट हु इज गोइंग इनटू सिविलाइजेशनल स्टडीज will actually start spending months together with an expert in that area.
And by the time they're 18 and 19, they're working on projects related to some project related to history, or similarly, if somebody is working in Sanskrit and mathematics space, then they're connected to such an acharya in Bharat. They spend time with them. So these exposures of going out and meeting, being with people, being in the different environment as they're growing older, older means in their studies at Vidyakshetra, I think they are very well placed to face any answer, or they give any answer or face any situation. What I have seen is that children open up, because they have a multi-dimensional view of life. Unlike other, if they had gone to regular school. Yeah. On the contrary, actually, if somebody brings this question to me, I ask them, is today's education preparing children for facing the world? Not It really. is not, it's No. absolutely not. No. And that's we are seeing the result of it, that, most of the students they find it so difficult to, face adversity. And direct byproduct of that is, difficulty in relationships, and Yes. and how many children want to spend time with their parents? How many teenagers want to sit with, if some guest comes at home, and spend Wish time? bhi nahi karte. Yeah, there's no Wish bhi eye nahi contact. karte. Yeah, No they eye don't. contact. Yeah. And they are glued to their mobile phones and laptops and televisions and their own. So this is, imagine, what we are investing in. It's a direction which is going to take us in the, significant disaster is awaiting actually in future. And because it carries on till adult life also, they can't maintain marriages or a healthy relationship, no commitment. So ये सारे हम लोग दूसरे के फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं. सेंसिटिविटी खो रहे हैं. जैसे सौंदर्यबोध खो लिया, तो जो रिफाइनमेंट है, सेंसिटिविटी है, एक दूसरे को समझने का जो तो बात करने से ही आता है ना, व्यवहार से ही आता है ना. जब मैं बात करूंगा किसी से, उसका दुख, उसकी खुशी, उसकी चाह, और क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, समझ में आता है. पर आज की तो ये परिस्थिति ही नहीं है. तो ये जो बातें हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी शिक्षा इतनी पावरफुल थी और है. आज भी अगर हम हमारी भारतीय शिक्षा को अपना लें, ये होलिस्टिक पंचकोश विकास का मतलब ही यही है कि बच्चे होलिस्टिकली ग्रो करेंगे तो वो किसी भी सिचुएशन को डील कर लेंगे ना. तो अमेजिंग. बहुत 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 धन्यवाद मुनीत जी. I'm sure the viewers will have learned so much if they watch the whole episode. And we look forward to speaking with you again on the future of education and Indian knowledge systems. जब भी आपके पास समय हो. और I hope I can join you in one of your trips. It sounds amazing कि कहाँ जा रहे हैं आप 2025 में. So thank you for that trip on Kumbh Mela. तो मुझे ध्यान रखना चाहिए अगले वर्ष का. और हरिओम जी और जय श्री कृष्णा. बहुत बहुत अच्छा लगा. जय श्री राम. Thank you for your time. जय श्री राम. थैंक यू. नमस्ते. नमस्ते.